जो शख्ص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھوانا۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑ دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے یہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی وہ بہت بے نیاز ہے۔ تعلقات منتصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے اور چھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ محبت کے کیمرے کی ایک گھڑی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کسی کو بہن کہہ دینے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محروم اور نامحروم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں اور خود کو بھی دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ مخلص رشتے بنانے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا مطلب آپ کے رشتے کی بنیاد میں ہی ملاوٹ تھی۔ آج کے دور میں صرف چیزوں میں ہی ملاوٹ نہیں بلکہ جذبات میں بھی ملاوٹ ہے۔ دراصل خالص چیز لوگوں کو ہضم کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی، نمک بھی ہر زخم کی دوا ہوتی۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ اگر دولت کمانا ہی زندگی کی حقیقی کامیابی کا اصل مقصد ہوتا تو قارون کو کامیاب ترین انسان مانا جاتا۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں۔ حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیز استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ خونی رشتے توڑ کر انسان تو جوانی گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں۔ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ پریشانی صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عطر لگا کر کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ کردار سے خوشبو آئے۔ مقدر بدل جائے گا، تم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگ تو صحیح۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ ایک شخص نے مولا علیہ السلام سے کہا، یا علیہ السلام، اللہ سے دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اس چھوٹے بچے کی طرح جسے کچھ بھی چاہیے وہ فقط روتا ہے، کچھ بولتا بھی نہیں، مگر اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے، اور اللہ تو اپنے بندوں سے
माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। सब कहने की बात है, कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। जिंदगी में खुशबू का दारोमदार इस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तयन करती हैं। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, मगर इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। यह सत्तारुल उयूबी मेरे ऐब छुपा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन। ऐ अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की दुआएं औलाद के हक में बहुत तेज़ी से कबूल होती हैं। खामोशी इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं। हर बंदा जवाब का मुस्तहक नहीं होता। माँ बाप की तकलीफ को नज़रअंदाज मत कीजिए। यह जब बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। होने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया। वह वक्त, वह इंसान हो या कोई रिश्ता। यूं ही नहीं आई मेरे लहजे में तलख्ती, रिश्तों में रवैयों का जहर चखा है मैंने। वह घर जन्नत है जिसमें माँ है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे। आमीन। बहुत खूबसूरत होते हैं वह रिश्ते जो फासलों के बावजूद भी हमेशा याद रहते हैं, दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। अगर लोग आपको ज़रूरत के वक्त याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, उन्हें मतलबी न कहिए, क्योंकि चिराग की ज़रूरत अंधेरे ही में पड़ती है। आजकल तो रिश्तेदार इन लकड़ियों की मानिंद हो चुके हैं, जो दूर हो तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाए तो आग लगा देते हैं। गीबत अम्ल को खा जाता है, झूठ रिज़्क को खा जाता है, गुस्सा अक्ल को खा जाता है, तकब्बुर इल्म को खा जाता है। इंसान का इखलाक, ज़बान, सोच और ज़र्फ बता देता है कि वह अनपढ़ है या पढ़ा लिखा जाहिल है। कुछ रिश्तेदार बिल्कुल कोरोना की तरह होते हैं। इनसे मुनासिब फ़ासलों रखने में ही आप महफूज और पुरसुकून रह सकते हैं। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई, मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह करता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरत पूरी कर दिया करें। उनकी ज़बान से निकली हुई दुआ आपकी मुकद्दर बदल सकती है। लोग अक्सर नर्म लहज़ों से कितनी सख्त बात कर जाते हैं कि उनके लफ्ज़ों की तपिश भुलाने में सारी उम्र गुजर जाती है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वह अपने रवैयों से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह। रिश्ते खून के नए एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास न हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि कल तक हवा में उड़ने वाले कभी कभार चलने के काबिल नहीं रहते। आजिज़ी और अंसकारी के साथ जीना सीखिए। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलिए। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि नेकी का ज़माना नहीं रहा, वह दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, उनके लिए हर ज़माना नेकी का ही होता है। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले इतना याद रखिए कि आप भी इंसान हैं और गलतियों से पाक नहीं। माँ बाप सीढ़ी नहीं होते कि जिन पर चढ़कर हम बुलंद हो जाए और फिर उन्हें फरामोश कर दें। माँ बाप बच्चों की ढाल होते हैं, एक ऐसा दरख्त जो बूढ़ा होकर फल भी ना दे लेकिन शायद ज़रूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती है, जब भी लगती है या किसी की असलियत दिखा देती है या कुछ न कुछ सिखा देती है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ हमेशा डूब जाया करती हैं। एक दरख्त 1 लाख माचिस की तिल्ली बना सकता है, मगर माचिस की एक तिल्ली 1 लाख दरख्त जला सकती है। जमीन इंसान रिस्क देती है, मगर जब इंसान मर जाता है तो ज़मीन इसे अपना रिस्क बना लेती है। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद, लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो आप जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। कभी कभी हक बात कहने से मत घबराना,
क्योंकि खुदा के सिवा न तो कोई जिंदगी कम कर सकता है, न कोई रिस्क रोक सकता है। या अल्लाह, जो सर तेरे सामने झुकता हो, इसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं, लहज़ों में तलाश करें। अल्फाज तो मुनाफिक के भी मीठे होते हैं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि न कोई तुम्हें मौत दे सकता है और न ही कोई तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा। दफन हो जाएंगे आयत बदलने वाले, कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। वक्त और दौलत दो ऐसी चीज़ है जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी इस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। सब्र में इतनी ताकत होती है कि धोखा देने वालों की बुनियादें हिला देती है। किसी नेकी को मामूली न समझे, शायद वही आपकी मगफिरत का वसीला बन जाए। दुनिया वह किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती और ज़माना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। हिंदू का सवाल। एक हिंदू ने हजरत अली रज़ी अल्लाह से सवाल किया, हिंदू मुर्दे जलाते हैं जबकि मुसलमान मुर्दे दफनाते हैं, क्यों? हजरत अली रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, कचड़ा जलाया जाता है और खजाना छुपाया जाता है। नर्म दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी ईमान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। सब्र ईमान की बुनियाद है। इखलाक इंसान की खूबसूरती है। सच्चाई कुरान की ज़ुबान है। आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है। दुआ मोमिन का हथियार है। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। सुनहरी बातें। सब्र करने में और सब्र आने में बहुत फ़र्क होता है। सब्र करते करते इंसान मजबूत हो जाता है और सब्र आते आते इंसान खामोश हो जाता है। हूर की खूबसूरती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की कोई औरत ज़मीन वालों की तरफ झांक ले तो ज़मीन व आसमान के दरमियान तमाम चीज़ों को रोशन कर दे और इसको खुशबू से भर दे और इसके सर की ओढ़नी दुनिया और तमाम चीज़ों से बेहतर है। कागज़ की कश्ती थी, मिट्टी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वह नादान बचपन ही कितना प्यारा था। अस्तगफार। अस्तगफार की तौफीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह हमारे तमाम खताओं को माफ़ फरमा दे। गहरी बात। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।